topic is infertility. Infertility बताया था आपको, there are some couple who are infertile, that means they are not able to produce young ones. So it may be the reason that the girl is important or maybe boy is important. So I'm going to start with the topic. Please write down heading infertility. Infertility. इसके अंदर लिखो, a large number of couples are infertile. Large number of couples are infertile. That is, they are unable to produce. मैम रिपीट कर दो एक बार. Okay, infertility के अंदर लिखो, large number of couples are infertile. That is, they are unable to produce children in spite of, that is, they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. Infertility में लिखो, large number of couples are infertile. That is, they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. These are diagnosed and treated in infertility clinics. There are special clinics for this. Normal clinics में ये treatment नहीं होता. तो आपको बताया था एक ये सबसे बड़ा स्टिग्मा है कि infertility disorders are diagnosed diagnosed and treated in infertility clinics. And treated in. अच्छा, क्या कह रहे हो? Should I repeat? Dolly, we are doing this topic. Write down heading. Dolly, we are doing this topic, infertility. Large number of couples are infertile. That is, they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. So these are treated and diagnosed and treated in infertility clinics. If it is not treated, couples are assisted to have children. If it is not treated, couples are assisted to have children through ART. ART की full form लिखिए आपकी screen पे. ART is Assisted Reproductive Technologies. Assisted Reproductive Technologies. Assisted Reproductive Technologies.
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में सबसे पहली टेक्नोलॉजी है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. देयर आर 4 मेथड्स. तो इसमें सबसे पहला मेथड है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. अब बहुत सारे बच्चों को मिथ होता है कि बच्चा बना देते हैं टेस्ट ट्यूब में और वो हमें टेस्ट ट्यूब में ही दे देते हैं बच्चा. तो टेस्ट ट्यूब बेबी में, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये है कि जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, फर्टिलाइजेशन इज डन आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल. कई फीमेल्स होती हैं जिनके फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाती, स्पर्म वहां तक पहुंच नहीं पाता है, स्पर्म की प्रॉब्लम आती है, स्पर्म जो है मोटाइल इतना नहीं है, या फिर एग जो है वहां तक नहीं रीच कर पाता, या देयर इज सम प्रॉब्लम. तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही, तो उस केस में हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम करते हैं. तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में डिटेल में आप लिखो. टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसके बारे में लिखो. in this method ova from the wife or donor female, ova from the wife or donor female, and sperm from husband. It can be from husband or from any other person. Sperm from husband or donor. Ova from wife or donor female and sperm from husband or donor are allowed to fuse under simulated conditions. Sperm from husband or donor are allowed to fuse under simulated conditions. Simulated conditions वो होती हैं which are present inside the womb, जो मदर के अंदर होनी चाहिए conditions, वो लैब में हम करते हैं. टेम्परेचर, ऑक्सीजन, सब कुछ मेंटेन करते हैं. एंड डैश डाल के लिख लेना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF. इन विट्रो मतलब होता है बाहर, बॉडी के जो बाहर करेंगे इन विट्रो, बॉडी के अंदर होती है जो नॉर्मल है हमारे में इन वीवो. Okay, there is a difference between in vitro and in vivo. In vitro is outside body. I have a video. I'll definitely share that video. Test tube baby में क्या होता है, egg अभी पढ़ा आपने, egg from the mother or donor female and sperm from the father or donor male. They are allowed to fuse within the test tube under stimulated condition. और दोनों की फ्यूजन के बाद बनेगा जाइगोट. जाइगोट जो है दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे. जाइगोट स्टार्ट्स टू डिवाइड बिकॉज न्यूट्रिएंट मीडियम्स उसके अंदर दिए हुए हमने. इट डिवाइड्स टू फॉर्म 2 सेल, फिर उसके बाद 4 सेल, फिर 8, 16, 32. जब वो 32 सेल स्टेज आती है, देन इट इज इम्प्लांटेड इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल एंड दिस इज नोन एज एम्ब्रियो. आपको समझ आ रहा होगा, हमने जाइगोट से डिवीजन देखी और डिवीजन के बाद जब वो एम्ब्रियो स्टेज में आ गया, देन दिस एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड. तो इसको एक टेक्निक का नाम देते हैं ET. व्हाट इज ET? एम्ब्रियो ट्रांसफर. हाँ, तो अब इसमें ये सेकंड पॉइंट जो आप लिखोगे दैट इज अबाउट एम्ब्रियो ट्रांसफर. तो इसमें लिखो द जाइगोट, और नेक्स्ट पॉइंट लिख लो द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो the zygote or early embryo is transferred into the uterus. Dolly ये लिखो रजे. Dolly, I have written everything on the screen, just note it down.
पहले आपने टॉपिक लिखा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है? जिसमें कपल आर अनएबल टू प्रोड्यूस यंग वन इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स। जी, इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके ओके। तो अगर इनफर्टिलिटी हो तो उसके लिए हम, अगर इनफर्टिलिटी के बाद भी ठीक ना हो, इवन आफ्टर विजिटिंग इनफर्टिलिटी सेंटर्स, देन दिस ART टेक्निक्स आर यूज्ड। ART टेक्निक्स जो हैं इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहला प्रोग्राम आपने पढ़ा टेस्ट ट्यूब बेबी, विच इज वेरी प्रेवलेंट दीज डेज। इसमें हम डोनर से या फिर मदर से, सपोज कपल दोनों हेल्दी हैं, उनके एग भी प्रोड्यूस हो रहा है फीमेल में और मेल में स्पर्म्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज बिकॉज ऑफ सम रीजन, देन देयर फर्टिलाइजेशन इज डन विद इन टेस्ट ट्यूब। लेकिन कई बार क्या होता है, स्पर्म की मोटिलिटी लो होती है, कई बार एग ही डेवलप नहीं होता, एग ही फॉर्म नहीं होता, या फॉर्म होता है वो पहुंच नहीं पाता ओविडक्ट तक। देन इन दिस केस, इन बोथ द केसेस वी गो फॉर दीज टेक्निक्स। तो इसमें क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में एग और स्पर्म डालते हैं, फ्यूज करवाते हैं अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन। स्टिमुलेटेड कंडीशंस वो कंडीशंस है विच आर प्रेजेंट इनसाइड द वोम, मदर की कोफ में, मदर की वोम में। एंड देन फर्टिलाइजेशन इज डन। फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो 32 सेल स्टेज का होता है, क्योंकि जाइगोट एक है, ये हमने डायग्राम में पढ़ा था अभी, कि जब स्पर्म और एग दोनों फ्यूज हुए, दोनों ने बनाया जाइगोट, तो जाइगोट जो बनता है डिवाइड होगा, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। जब वो 32 सेल स्टेज आता है, देन इट इज ट्रांसफर्ड इनसाइड द यूट्रस, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो अभी जो आप लिख रहे हो वो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर में लिखो, द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड, the zygote or early embryo is transferred the zygote or early embryo is transferred into the uterus or fallopian tube. Into the uterus or fallopian tube. तो छोटी छोटी टर्म्स पे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट एक टर्म आता है गिफ्ट, और सच में गिफ्ट है गॉड का। अब गिफ्ट में मतलब ये नहीं कि रैप्ड कुछ बच्चा आएगा, गिफ्ट का मतलब है, इसकी फुल फॉर्म लिखो। सेकंड प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम था टेस्ट ट्यूब बेबी, सेकंड में लिखो गिफ्ट, दैट इज gamete intra fallopian transfer. How many of you have seen umbilical cord? 10 दिन के बच्चे को अगर किसी ने देखा है तो umbilical cord देखी है? How many of you have seen? खुशी, अनुभव, विश्मीत, तन्वी, महक, okay. Jasmine, okay, very good. So many of you have not seen Dolly, Utkarsh, okay. So I'll share picture, ठीक है? I'll share picture. There is an addition in our family. My brother is blessed with a baby. तो उसके I'll try to share that umbilical cord picture. Okay? But do see that because it's good to see God's creation. So gamete intrafallopian transfer. इसका मतलब क्या है कि गमीट जो है, अब अनफॉर्चुनेटली स्पर्म्स बन रहे हैं, बट दे आर इमोटाइल, दे आर नॉट पोटेंट। और अगर एग बन रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट पोटेंट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसीज विद इन द फीमेल बॉडी और मे बी इन द मेल बॉडी। तो अब मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि जब हम बोलते हैं गेमीट्स के, अगर कोई फीमेल बोलती है, ये हमने पहले भी बात की थी कि मेरे साथ मिसहैप हुआ है, और वो, और अगर किसी एल्डरली पीपल पे अगर वो उसको विक्टिमाइज किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, अगर 60 प्लस है कोई इंसान मेल्स के केस में, तो वी गो फॉर दिस पोटेंसी टेस्ट। तो शायद याद होगा, आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू दैट, बट अगर आपने सुना हो, एक बहुत फेमस जो पर्सनैलिटी थी, उनके ऊपर ऐसे आया कि उन्होंने बहुत सारे फीमेल्स के साथ को उनके साथ में सैप किया है। Yes, everybody is aware of that. Yes, about that case. Yes, almost all. Yes, Yuvraj.
No? You said no? No, I'm not aware of it. Okay, but I don't remember the name now, but he has some big beard. बाबा पता नहीं क्या नाम है उनका. आत्माराम Ram आसा. Rahim. No, no, not Ram. Ram Rahim. नहीं आसाराम आसाराम. Asaram. Asaram. Yes, yes. So I don't want to name anyone because it's somebody believe that he's God. So I don't want to go into that. But उन पे अगर हमने केस किया कि सपोज किसी ने बोला कि इन्होंने किया है, तो ऐसे आप किसी को नहीं कह सकते. तो उनके लिए फिर उनका पोटेंसी टेस्ट होता है ऐसे लोगों के लिए जो अगर बहुत एल्डरली हैं एंड पीपल आर फॉलोअर्स. यू कैन नॉट से गो एंड से एंड उनकी जो इमेज आप खराब कर सकते हो. तो व्हाट गवर्नमेंट डू इज दे आस्क हिम टू गो फॉर दिस पोटेंसी टेस्ट. If male is active at that stage, because sperms they produce throughout the life in case of males. But if male is not sexually active, तो sperms की motility rate is very low or almost nil after certain age. I hope I'm clear to everyone. तो उस हाँ तो उस केस में उनको पोटेंसी टेस्ट करवाया and it was seen that yes potency was there. That is why he's in jail. So that is why cases are there against that person or maybe any other person. Because if you clear that potency test, that means you're active, your sperms are active, and sperms are active only when hormones are active. Got it? तो ये जो gamete है, gametes, ये बनते मेल्स में थ्रू आउट लाइफ है. फीमेल्स के केस में मेनोपॉज तक बनेंगे. लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी एज या आपकी एज में भी बन रहे हैं लेकिन दे आर नॉट पोटेंट. होने चाहिए थे बट नहीं हो रहे. तो हम क्या करते हैं किसी और से लेते हैं गेमीट और ट्रांसफर कर देते हैं. और कहाँ ट्रांसफर करते हैं? फेलोपियन ट्यूब तक, ईदर एग और ईदर स्पर्म. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज गिफ्ट. बट it is not at all related to any gift, but gift means I think आपको समझ आ रहा है. gift is gamete intrafallopian transfer. Please write down about this process. This method involves transfer of. अब अगर मैंने बोला कि एग डाल रहे हैं तो क्या उसी फीमेल का एग डालेंगे कि किसी और फीमेल का? यस. मुझे एग विल बी फ्रॉम द सेम फीमेल और फ्रॉम डिफरेंट फीमेल? मैम अगर एबल है फर्टिलाइजेशन के तो हाँ नहीं अनुभव बच्चे उसी फीमेल का एग होगा कि किसी और फीमेल का एग होगा? बताओ. मैम अगर वो फीमेल उस फीमेल का एग फर्टिलाइजेशन के लिए एबल है तो हो सकता है. यस बच्चे नहीं. बट अगर मैंने आपको बोला कि ट्रांसफर कर रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज फ्रॉम आउटर सोर्स, है ना? यस. तो अगर फीमेल का ओके है तो फिर हमें डालने की जरूरत नहीं है. जनरली द एग फ्रॉम डोनर फीमेल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द fallopian ट्यूब ऑफ another फीमेल. और ये तब होता है जब एग नहीं प्रोड्यूस हो रहा. तो लिखो दिस मेथड इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओवम this method involves transfer of ovum collected from donor female this method involves transfer of ovum collected from donor female into another female who cannot produce ova. Who cannot produce ova but can provide suitable condition. Okay, repeat. Okay. This method involves transfer of ovum. This method involves transfer of ovum collected from donor female into another female
collected from donor female into another female who cannot produce ova but can provide suitable conditions for fertilization. But can provide suitable conditions for fertilization. But can provide suitable conditions for fertilization and further development of fetus and further development of fetus and further development of fetus up to parturition. तो वो किसी और का एग संभालती हैं up till parturition. So that is why it is called as gift. This is all about gift. इसके बाद एक और आता है नेक्स्ट, जिफ्ट भी बोलते हैं. तो उस केस में हम जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं. बट नाउ राइट डाउन थर्ड मेथड. इट इज ICSI. ICSI is intracytoplasmic sperm injection. Intracytoplasmic sperm injection. In this method, sperm is directly injected into the ovum. ओवम एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्शन से स्पर्म के न्यूक्लियाई को इंजेक्ट कर दिया जाता है with the help of a syringe. In this method, sperm is directly injected into the ovum to form an embryo. In the lab. In this method, sperm is directly injected into ovum to form an embryo in the lab, and then embryo transfer is carried out. Then embryo transfer is carried out. Done, everyone?
तो ये आपको मेथड समझ आ गया. इसमें स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एग artificially. Last method is artificial insemination. This technique is used in case of cattle, याद होगा, but it is done in case of humans also. बायोटेक में हम पढ़ेंगे. तो ये बड़ी अजीब सी चीज है. Even any one of you wish to become a vet dog, veterinary doctor, anyone? Yes, Angelina, Tanvi, you have raised your hand. Is this you want to become a vet doctor? Animals doctor, anyone? No. Yes, Angelina says yes. Yes, okay. No, no one. Okay, किसी की एस्पिरेशन नहीं है कि डॉक्टर बनना है, बोला एनिमल्स का. Okay, no worries. But this is prevalent these days. आपने देखा है लोग पेट बहुत रखते हैं, डॉग्स रखते हैं, कैट्स रखते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स रखते हैं अपने घरों में, है ना. आजकल लिजर्ड्स भी रख रहे हैं, फिशेस भी रख रहे हैं. तो वेट डॉग्स जो हैं वो कैनाइंस के अलग होते हैं, बाकी सी एनिमल्स के लिए अलग होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए. तो ऐसे डॉक्टर क्या करते हैं, दिस टेक्निक इफ आई एम टेलिंग अबाउट, इट कैन बी डन इन ह्यूमंस, बट इन केस ऑफ कैटल्स, अब अगर ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोटेक में, बट अभी आई एम गिविंग अ ब्रीफ आइडिया. इसमें सपोज आप गए हो स्विट्जरलैंड, मैंने आपको बताया था वहां इतना दूध है, वहां की स्विस काउज जो हैं दे प्रोड्यूस सो मच ऑफ मिल्क कि वहाँ हर चीज में दूध है. दूध इतना ज्यादा बन जाता है कि वो चीज बना के उनको कमरों में बांध देते हैं रॉट करने के लिए, खराब करने के लिए. जब उस पे फंगस लग जाती है कुछ सालों बाद, फिर उसको खाते हैं, इतना दूध है. एंड सबसे फ्लेवर्ड जो है जो चीज है, दैट इज ऑल्सो रॉकफोर्ड चीज. हम पढ़ेंगे ये सारा. और उस जो रॉकफोर्ड चीज है सबसे महंगा स्विस चीज है, और आप बिलीव करोगे उस पे वो चीज सबसे फ्लेवर्ड इसलिए बिकॉज उसके अंदर फंगस लगी हुई है, उली लगी हुई. दैट इज द कॉस्टलीस्ट चीज इन द वर्ल्ड. कल को अगर आप रशिया जाते हो या यूरोपियन कंट्रीज में जाते हो तो डू टेक दैट. तो वो इट इज अ डेलिकेसी देयर. तो ये अगर वहां की काउज इतना दूध प्रोड्यूस कर रही हैं और यहाँ पे इतना कम है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक द स्पर्म फ्रॉम द मेल इन स्विट्जरलैंड. वहां का स्पर्म अगर आप लेके आते हो, सीमेन लेके आते हो, ऑब्वियसली यू कैन नॉट कैरी इट इन हैंड्स. तो आपने अगर ट्यूब में डाला है, यू हैव टू कीप इट इन. यस, एनीवन? किस में रखेंगे उसको, स्पर्म्स को? Liquid nitrogen. वेरी गुड, वेरी गुड. आपको बताया था किसी भी चीज को अगर जिंदा रखना है आपने काफी दिनों तक, तो लिक्विड नाइट्रोजन, बिकॉज इट्स टेम्परेचर इज -192 डिग्री सेल्सियस. तो अगर आप इतने, 196. हाँ 192 और अप्रॉक्स, यस. तो 190 से प्लस होता है -190 से, तो 192, ओके, 196, ओके. तो आप अगर उस पे रखते हो तो ये उसी कंडीशन में रहते हैं. तो इफ यू हैव ब्रॉट दैट सीमेन टू इंडिया and you are trying to inject within the females, you can inject एक बुल का सीमेन जो है that can be injected in 200 to 300 cows. इतनी सारी फीमेल्स को प्रेग्नेंट कर सकते हो with one semen from single bull. अब वो सीमेन कैसे इंसर्ट करते हैं? सिरिंजेस लेते हैं, एनल रीजन से हाथ इंसर्ट करते हैं विद इन द फीमेल बॉडी, और फिर उसके बाद सिरिंज जो है ऐसी सुई नहीं होती जिसके आगे पॉइंटर होता है, वो सुई होती है जिसके आगे प्लास्टिक, मोल्डेड प्लास्टिक होता है, और फिर वो यूट्रस से भी आगे लेके जाते हैं फेलोपियन ट्यूब तक. दिस इज डन इन केस ऑफ एनिमल्स. एंड डू यू थिंक इट इज इजी? नॉट एट ऑल. जानवर आपको हाथ भी नहीं लगाने देगा, तो इट इज, और बेहोश भी करना उसको तो बड़ा मुश्किल है. So it is a tough job, and this picture is given in your NCERT, and I'll show you one picture also, step by step process. So artificial insemination is done in case of animals and it is frequently done. अगर आपको लग रहा है यहाँ पे ये बुल बहुत अच्छा है, इसी के आगे जनरेशन चाहिए, तो you can take the semen and inject artificially. अगर किसी ने सुना, हरियाणा में एक बुल है जिसकी कीमत अराउंड 10 से 15 लाख है. किसी ने सुना है? सुल्तान उसका आई गेस नेम है ना. हाँ, उसका नाम बहुत रॉयल वो है बुल. कीमत ही उसकी बहुत ज्यादा है. आई थिंक युवराज सिंह ने, क्रिकेटर जो है, उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ, आई डोंट नो, बट जब आप गूगल करोगे तो यू विल फाइंड दैट पिक्चर आल्सो. तो वो बुल की इतनी कीमत इसलिए है, अब आप समझ सकते हो कि इतनी वैरायटी है, एंड यू डोंट वांट टू लूज दैट जीन्स. इतने अच्छे जीन्स है उसके अंदर, उस बुल के अंदर, एंड यू वांट दैट जीन्स टू बी कैरिड
further to all the next generation, तो आप क्या करोगे, उसका सीमेन इंजेक्ट कर दोगे नेक्स्ट जनरेशन में. So this is done in case of animals, but in humans also this is done, but not through injection. लिखो, in this method semen is collected from the husband. Semen is injected, semen is collected from the husband or healthy donor. Semen is collected from husband or healthy donor. And it is artificially introduced into the vagina. And is artificially introduced into the vagina or into the uterus. इसीलिए इसको हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी कहते हैं. ब्रैकेट में लिख लेना, इंट्रा यूटेराइन, UTERINE इंसेमिनेशन. Intrauterine insemination. In this method, semen is collected from husband or healthy donor, is artificially introduced into the vagina or into the uterus. I hope all the 4 techniques are clear to everyone. सबसे पहली टेक्निक थी टेस्ट ट्यूब बेबी, which is also known as, yes, क्या लिखा हुआ लास्ट लाइन में, IVF. तो अगर आपको yes, अगर क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब इन, yes, in vitro fertilization. अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है explain about IVF, तो आप ये नहीं सोचना कि मुझे तो लिखा ही नहीं कुछ भी. They're just simply asking you about test tube babies. तो simple test tube babies के बारे में आप लिखोगे क्योंकि tricky question आएगा. इसी में ही अगर क्वेश्चन आ गया एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो भी वो एक ही बात है. तो IVF, एम्ब्रियो ट्रांसफर और टेस्ट ट्यूब बेबी वन इन द सेम थिंग. गिफ्ट आपको बता दिए. कई बार क्वेश्चन आ जाता है या नीट में क्वेश्चन आता है व्हाट इज जिफ्ट. गिफ्ट के अलावा कर देते हैं जिफ्ट. व्हाट विल बी जिफ्ट? zygote intraphyllopian फिलोपियन. यस यस, एंड में ये लिख लो जिफ्ट, लास्ट लाइन में लिख लेना जिफ्ट. तो जैसे ही हमने गेमीट ट्रांसफर किया वैसे ही हम जाइगोट भी कर सकते हैं. कई बार जाइगोट बन रहा है बट वो इम्प्लांट नहीं हो पा रहा क्योंकि मदर इज वीक. तो जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर. फिर ICSI आ गया. आपको ICSI बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है. फिर उसके बाद AI बता दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ओके, और इट इज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन. Write down next question, amniocentesis. 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 जी ये टेक्निक पहले आप समझ लो. इन एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? बच्चा जो है मदर बॉडी में एक पानी में है, उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड. आई एम रिपीटिंग, मदर बॉडी में बच्चा जो है दैट इज इनसाइड अ फ्लूइड एंड दैट फ्लूइड इज अ प्रोटेक्टिव फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड. तो कई बार बच्चे भूखे होते हैं, वैसे तो मदर से खाना जा रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड से. आई विल शेयर पिक्चर, डेफिनेटली आई विल शेयर पिक्चर. तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा जो है अम्बिलिकल कॉर्ड से खाना, गैसेस पास करता है, वाटर, आयंस, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो मिलती रहती है. बट समटाइम्स इफ द मदर इज हंग्री, अनफॉर्चुनेटली मदर के टाइम गैप ज्यादा हो गया है या फिर कोई अनफॉर्चुनेट थिंग हुई है, मदर इज नॉट एबल टू ईट ऑन टाइम, देन बेबीज व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू दिस कंज्यूम दिस फ्लूइड. थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं, पानी पीना शुरू कर देते हैं. एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक फ्लूइड इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था, इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर. जैसे पानी में अगर बॉल गिरती है तो वो बाउंस होगा, हल्का सा बाउंस होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सेम अगर बच्चा, मदर को कुछ जर्क लगता है, गॉड फॉरगिव, तो बच्चे को सिंपल हल्का बाउंस होता है, तो इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर. शॉक एब्जॉर्बर मतलब जर्क नहीं लगता. तो अगर असली में भी शॉक भी लग रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक, देन ऑल्सो इट विल एब्जॉर्ब दी शॉक.
तो it is a shock absorber. This is a very important fluid, but unfortunately people are using this fluid to check or to determine the sex of the child. ये पेट के साइड पे, जैसे अगर आप समझ रहे हो एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके साइड पे अगर आप सिरिंज से दिस फ्लूइड कैन बी टेकन आउट वेरी इजीली. फ्लूइड निकाल लेते हैं सिरिंज में, और उस सिरिंज में जो फ्लूइड आया उससे हम क्रोमोसोम से फाइंड कर सकते हैं वेदर दी चाइल्ड इज अ गर्ल और अ बॉय. बिकॉज जो लास्ट वाला, अगर आपको पता हो, हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम है. अगर मेल होगा तो ये क्रोमोसोम ऐसी शेप होगी, अगर सॉरी, और अगर फीमेल हो गई तो फिर वो ऐसे एंड वाला क्रोमोसोम. तो you can detect very easily the sex of a child, but earlier it was used to find any chromosomal aberration, if there is any kind of chromosomal aberration within the embryo. तो पहले हम डायग्नोस करते थे कि मेंटल रिटार्डेशन, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, कोई मतलब उसके बाल या पिगमेंट, कई बार क्या होता है बच्चा पैदा होती है एल्बिनिज्म होता है. एल्बिनिज्म इज फुलवेरी, जिसमें बच्चे के पिगमेंट ही नहीं बनता, समझ रहे हो, सिंस बर्थ. दैट इज इनक्योरेबल, वो क्योर करना बहुत मुश्किल है. तो देर आर फ्यू डिजीजेस विच कैन नॉट बी क्योर्ड इफ दे आर सिंस बर्थ. तो एमनियोसेंटेसिस असली में टेक्निक थी प्री नेटल डायग्नोसिस. बच्चा पैदा होने से पहले एमनियोटिक फ्लूइड निकालते थे प्रेग्नेंट फीमेल का, and it was checked for any kind of chromosomal abnormality. But now this method is abused, it is misused for destroying the normal fetus. इसीलिए determination of sex by amniocentesis has been totally banned. It is illegal now. Normal भी अगर आप चाहते हो करवाना chromosomal aberration, then you have to ask government that what is the reason that you are going for this. Otherwise this determination of sexes has been banned totally. और डॉक्टर्स और आप जेल जा सकते हो. इसीलिए this is a good step taken by government, because female feticide बहुत common हो गई थी in पंजाब और हरियाणा. तो राइट डाउन हेडिंग एमनियोसेंटेसिस. इट इज अ प्रीनेटल. समझ आ गया सभी को एमनियोसेंटेसिस क्या है? Yes, ma'am. ओके, तो लिखो सब प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक prenatal diagnostic technique prenatal diagnostic technique in which sample of amniotic fluid prenatal diagnostic technique in which sample of amniotic fluid from the womb of pregnant woman. It is a prenatal diagnostic technique in which sample of amniotic fluid from the womb of pregnant woman is taken. Sample of amniotic fluid from womb of pregnant woman is taken during early stages of fetal development. Early stages of fetal development. बहुत अच्छी टेक्निक थी जब ये इसकी डेवलपमेंट हुई थी, and continued for early stages of fetal development, and cells are cultured and analyzed. लिख लिया?
By this next point, by this method, chromosomal abnormalities सबसे पहले तो हमें यही चाहिए था, abnormalities कुछ हैं और भी इसके साथ फायदे हैं. Sex of fetus, and developmental disorders. And developmental disorders could be detected. And developmental disorders could be detected. Next point, it is misused for destroying normal female fetus. It is misused for destroying normal female fetus. It is misused for destroying normal female fetus. Next line में लिखो, determination of sex by amniocentesis has been banned. Determination of sex by amniocentesis has been banned. Now please write down the questions जो आप लोग next class में अपने आप ढूंढ के मुझे बताओगे. Which vitamin maintains normal functioning of reproductive organ? कौन सा ऐसा vitamin है, vitamin है, which is required for normal functioning of reproductive organ? Name the vitamin which is used for normal functioning of reproductive organs. World Food Day is celebrated on which day? World Food Day is celebrated on which day? Name the element whose deficiency causes infertility. Name the element whose deficiency causes infertility. What is the scientific study of human population called? What is the scientific study of human population called? Scientific study of human population.
Write down next question. What is सहेली? एनसीईआरटी में गिवन है, आप लोग एनसीईआरटी से चेक करोगे. व्हाट इज सहेली? शायद बताया भी हो अच्छे से आपको, बट यू हैव टू सर्च वेयर इट इज गिवन. टेल मी द पेज नंबर इन द नेक्स्ट क्लास as well as where its definition also. What is Saheli? Which program was initiated by India? Which program was initiated by India to attain reproductive health? Which program? Reproductive and child health care. Yes. I'll ask you in the next class. Just write down the questions. Okay. Which program was initiated by India to attain reproductive health? Name one effective and popular method of barrier. Effective and popular method. अगर आज हो जाते हैं तो आप व्हाट्सएप करोगे इंडिविजुअली, नॉट इन द ग्रुप. अगर आज सबके फिनिश हो जाते हैं क्वेश्चंस, प्लीज शेयर इट इन द शेयर थ्रू व्हाट्सएप इंडिविजुअली. Name one effective and popular. Next point. Name one effective and popular method of barrier. Name the hormones used by contraceptive method. Name the hormones used by contraceptive method. Family planning was initiated in dash. Year बताने. In India. Family planning was initiated in dash in India. Sex education should be encouraged in school, yes or no? Sex education should be encouraged in school, yes or no? What do you say? What is your opinion? हम adolescents पढ़ेंगे topic, then you all have to answer. How many of you say yes, it should be there in school? सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को सोच के नहीं बताओगे आप, बाकियों को भी देख के बताओ. Oh my goodness. Half of the class says yes. Yes, Amanmeet? Okay, more than half is saying yes. What about others? They're saying no. Why? Aman? Anubhav, Harsh, why? You're saying no. Manpreet? Mehak Kondal, yes. You all are saying no. Why? बताओ क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, रीजन. कह रहे सेक्स एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हो, क्या ये बातें सबको बतानी चाहिए स्कूल में? क्या ये स्कूल लेवल में होना चाहिए? yes or no according to you? Tell me. Who will say? Who will speak out about this? Yes, Anvi is willing to say. बच्चे ठीक है, it should be there, but it should not be open to all. Reason being, there are students who will not be able to understand. तो अभी जैसे एक there was a common thing which happened in everywhere in India.
तो जब फैमिली कंट्रोल मेथड्स, जब बैरियर मेथड्स इंट्रोड्यूस हुए थे इन दी 90s, 90s समझ रहे हो, 1990s की बात है, when these contraceptives were introduced, then what government did was, even in Chandigarh in 2000, मतलब 2001 to 2008, so it was very common. What government was doing, they are trying to give away free contraceptives to the commoners. और उन्होंने क्या किया, अब ये चीजें लगा दी जैसे बस स्टैंड में तो, और पब्लिक टॉयलेट्स में उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रासेप्टिव समझ रहे हो सब की, कॉन्डम्स के बॉक्स लगा दिए, और वो बॉक्सेस में लिख दिया कि 1 रुपी कॉइन डालोगे देन यू विल गेट अ, मतलब वही 1 रुपी और 2 रुपी कॉइन इंसर्ट करना था तो आपको वो आ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया इन ऑर्डर टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन। बट माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंड वाज, in India, I'm talking about sector 17 only, what people did was, uneducated people, they are more in number as compared to educated ones, तो उन्होंने लगा दिया यहाँ किरण नीलम थिएटर, दैट इज इन सेक्टर 70। तो अभी भी वहां पे एक बड़ी अच्छी मशीन लगी हुई है, नॉट फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव बट देयर इज प्लास्टिक रिसाइकिल मशीन। किसने देखी है वो? आई हैव शेयर्ड दिस वीडियो इन द ग्रुप लास्ट ईयर। किसी ने देखी है वीडियो? देखी, मैंने आपको शेयर की थी कि आप एक प्लास्टिक की बोतल डालोगे, दे विल गिव यू रुपी कॉइन और दे विल गिव यू कूपन। तो वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की तरफ से, आज भी लगी हुई है वो मशीन। अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज यूजिंग बिकॉज नोबडी इज गोइंग देयर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बट आई लाइक दैट मशीन अ लॉट। उसमें आप प्लास्टिक कैन डालोगे, वो क्रश हो जाएगा एंड यू विल गेट रिवॉर्ड इन रिटर्न। तो लोग क्या करते थे, बच्चे बार बार जाते थे और रिवॉर्ड लेने के चक्कर में, पैसे मिल रहे हैं, यू वांट कैश और यू वांट कूपन, तो वहाँ ऑप्शंस आती हैं। तो अब वहाँ तब की बात है 2000 से वहाँ मशीन लगी, तो मशीन में क्या हुआ, जो जो ये मांगने वाले थे, बेगर्स थे, उन्होंने क्या किया, कॉइन डाला, कॉइन लिया, और उन्होंने सोचा एज इफ दे आर गिविंग बलून्स। अनएजुकेटेड पीपल, दे आर नॉट अवेयर कि उसका पर्पस क्या है, और उन्होंने बलून की तरह बच्चों ने बड़ों ने उनको फेंकना शुरू कर दिया। एंड लोगों पे जब लोगों ने उसको अब्यूज किया, उनको मारा या बोला, तो उन्होंने, उनको लगा कि ये कुछ गलत चीज है, तो लोगों पे उन्होंने फ्रीक्वेंटली ऑन यंग गर्ल्स, they started using this, even boys of from uneducated family, they started doing frequently with the girls. So मतलब क्या किया frequently, मतलब कि उनके ऊपर फेंकना। तो this happened and government को immediately उसको वहां से remove करना पड़ा। And I've heard a lot about this, and this was very embarrassing situation. You can understand that we are living in such society. तो ये प्रॉब्लम्स आई तो फिर इमीडिएटली बैन हुआ। तो इट इज देयर, इट शुड बी देयर सेक्स एजुकेशन, बट इस एक्सटेंट तक हो कि समझ आए, नॉट बियॉन्ड दैट। ठीक है, जैसे आप लोगों को करवाई जा रहा है, इट इज बिकॉज यू हैव टू स्टडी, यू विल बी अ डॉक्टर। आपको पता है कि आपके पास कोई पेशेंट आएगा, गर्ल है, बॉय है, दैट विल बी अ पेशेंट। आप ये नहीं देखोगे शक्ल की, वो तो ये सुंदर नहीं है, ये बहुत सुंदर है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फॉर यू दैट पर्सन विल बी अ पेशेंट, और आप एक गॉड की तरह उसको ट्रीट करोगे। दैट पर्सन इज इन पेन एंड यू विल ट्रीट। और आप कुछ नहीं देखोगे कि उस बच्चे को क्या है, उसने कपड़े क्या पहने हैं, कुछ नहीं। आप लोगों का सिर्फ एक काम होगा, उसको ट्रीट करना। तो ये समझते हैं वो लोग जिन्होंने पढ़ाई की। तो इट शुड बी देयर, बट मुझे लगता है कि थोड़ा लिमिट में। यस, एग्रीड? यस एवरीवन? Yes, ma'am. हाँ, नेक्स्ट लिखो, नेम सम एसटीडीज। एसटीडीज हाँ मुझे, तन्वी, व्हाट आर एसटीडीज? तन्वी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी? Yes, हाँ हाँ, sexually transmitted. Kritika, can you give me an example for STD? Any example, one? Ma'am, AIDS. Yes, AIDS. Very good. Okay. Now write down next part. Amniocentesis increases one level. What is that? Amniocentesis. Amniocentesis.
amniocentesis increases one evil. Amniocentesis increases one evil. What is that? Name one oral contraceptive. अब oral contraceptive की जगह अगर लिखा होता OC तब भी एक ही बात थी. Oral contraceptive. अब एक बच्चे ने आंसर लिख दिया था आईपिल. ओके, दैट इज करेक्ट, बट इफ यू गो विद योर एनसीईआरटी दैट विल बी बेटर. ऐसे तो बहुत सारी दवाइयां हैं, अनवांटेड 72 है, आईपिल है, बट अगर आप बुक के साथ जाओगे तो ट्राई टू राइट डाउन फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली. नेम वन सर्जिकल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. जब 25 क्वेश्चंस हो जाए बता देना. नेम वन सर्जिकल मेथड to prevent pregnancy. I'll search that video and I'll share that video. So sector 17 वाली जो मैंने अभी बताई ना आपको कि वो जो मशीन लगी है, I'll definitely share. वो पैड के इंसिनेटर की मशीन की भी पिक्चर्स I have. I'll try to share that also. जो बताया था ना आपको, यूज सैनिटरी पैड स्कूल्स में लगे, गवर्नमेंट स्कूल में. इनफैक्ट आपकी क्लास में से हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स दे रेज देयर हैंड कि हमने देखी है अपने स्कूल्स में लगी हुई मशीन. Boys have also seen that. Please raise your hand. Yes, boys. Okay, yes, yes. Machine, it's good, but you must know, you must be aware. क्योंकि उसकी चिमनी तो बाहर ही होती है, वॉशरूम्स के बाहर ही होती है, तो और मे बी योर टीचर्स हैव टोल्ड यू. यस, किसी के टीचर ने बताया अभी तक? नो. ओके. Which test is banned for sex determination? आधे से ज्यादा तो आते ही हैं आपको, अगर क्लास में अटेंटिव थे तो. एमटीपी. एमटीपी की पहले तो फुल फॉर्म लिखो. एक्सपैंड एमटीपी. एमटीपी का एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है. I'm sorry, I forgot to mention that. MTP is medical termination of pregnancy, and it is safe during अब आपने देखा है देर आर मेनी पीपल हु आर रेप विक्टिम्स, है ना. अगर कोई छोटा बच्चा है, अभी आप आजकल देख रहे हो अनएजुकेटेड पीपल, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर डूइंग दिस मिसहैप विद द गर्ल्स व्हिच आर वेरी यंग, है ना. 10 साल का अगर बच्चा है और या 14 साल से नीचे है बच्चा, तो इट इज वेरी अनसेफ फॉर दैट चाइल्ड टू बिकम प्रेग्नेंट. तो ऐसे केसेस में व्हाट गवर्नमेंट्स डू इज दे डू दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. बट अगर ये बच्चा जो 5 मंथ्स का हो जाता है तो, और ये मिड इसमें प्रेगनेंसी पीरियड आ जाता है, तो ये इट इज अनसेफ. तो वो तभी पूछा गया कि ऑन विच केसेस दिस एमटीपीज आर डन. इफ इट इज द केस ऑफ क्राइम, मतलब अगर किसी के साथ केस क्राइम का हुआ है, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं, and if you have more than 2 kids, or if you have 2 kids also, then also you can go with this. But until and unless government you have written permission from the doc, you cannot do this. Okay. तो डॉक्टर्स जो, जैसे अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, अब ये नहीं है कि जिनके 2 बच्चे हैं और बच्चा जो थर्ड बच्चा आ रहा है तो उसको डॉक्टर्स टर्मिनेट कर देंगे. नो, इट इज टोटली बैंड. इफ दैट चाइल्ड हैज एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी, देन ओनली डॉक्टर्स प्रोसीड विद दिस एमटीपी. तो वो दवाइयां देते हैं अबॉर्शन की. तो ये मैंने पूछा है कि सेफ कब तक है. इट इज रिटन इन योर एनसीईआरटी, यू हैव टू गो थ्रू दैट पैराग्राफ. हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव रिटन? 12 or 15? 17? 17. Okay, write down. Dash had an explosive impact on. Dash had
an explosive impact on growth of population. Dash has explosive impact on impact on population growth. What is periodic? What is periodic? Abstinence. ABSTINENC. Abstinence. What is periodic? Abstinence. I think 20 हो गए. This is your 20th question. Yes, ma'am. 19. 19 I write down. Next question. IUDs are inserted in dash. IUDs are inserted in Okay, you're done? Yes, ma'am. Okay. So we'll continue this topic in the next class. You have to complete these questions. और अगर किसी को doubt है, just let me know. Okay. And see you everyone in the next class. We'll try to read this chapter from NCERT now. Okay. Yes. Okay, बच्चों. Take care everyone. You can leave now. Thank you, ma'am. Okay, बच्चे.